ये क्वेश्चन देखो, दिस इज वेरी कॉमन क्वेश्चन इन एमपीएससी। क्या पूछ रहे, दो स्टेटमेंट्स दिया है। ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज गिवन अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 75 by r, where r is radius in meter. This is very common statement. What is the grade compensation? Actually 30 plus r by r, otherwise 75 by r, whichever is maximum. So ये 75 by r भी एक part of the grade compensation formula, empirical formula. बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऐसा ही पूछते, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेड कॉम्पेंसेशन इज 75 by r को ज़्यादा एम्फोसिस देते. सो दिस इज ए ट्रू स्टेटमेंट. सेकंड स्टेटमेंट एक बार देखो. अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस IRC, grade compensation is not necessary if the gradient is less than 4%. IRC क्या बोलेगा, ग्रेडियंट लेस देन और इक्वल टू 4% है तो डिस्काउंट देना जरूरी नहीं है. ग्रेड compensation is not required. This is also correct statement. So first statement is correct, second is also correct. So you can pick up the answer as option C. Very common question for almost all the competitive exams. A simple, direct, straightforward question. See the question, spot speed study. Spot speed is instantaneous speed, is useful in which of the following aspects of traffic engineering. Spot speed study is used for study of traffic capacity. आपने ट्रैफिक कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं ना 1000 V by S. That V whatever you are using is spot speed only. So कैपेसिटी के लिए spot speed चाहिए. To decide the speed trends, एक जगह पे स्पीड इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, व्हाट इज द स्पीड इन द मॉर्निंग, व्हाट इज द स्पीड इन द आफ्टरनून, व्हाट इज द स्पीड इन द इवनिंग, ये पूरा स्पॉट स्पीड्स लेके एनालाइज करते. सो स्पीड ट्रेंड्स आर बेस्ड अपॉन द स्पॉट स्पीड ओनली. टू यूज इन द एक्सीडेंट स्टडीज, आपने एक्सीडेंट एनालिसिस में वो यूज द स्पॉट स्पीड. एक्सीडेंट का स्पॉट में कितना स्पीड से एक्सीडेंट हुआ है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ व्हीकल व्हाइल हिटिंग, these are all very common. There we use spot speeds only. So the best choice is all of the above. कोई MPSC ऐसा सर्विस कमीशन क्वेश्चंस में all of the above, none of the above options है तो 99% that may be the common option. So present answer is answer D. Very standard IRC specification. एक बार देख लो. As per Indian Road Congress, maximum width of vehicle is 2.44 meter. You can round it to 2.5 meter. Maximum possible width of vehicle, allowable width of vehicle is 2.44 meter, rounded to 2.5 meter. Based on this maximum width of the vehicle, we decide the width of the lane as 3.5 meter and width of the shoulder as 2.5 meter. Okay? एक बार देखो ये क्वेश्चन को. Which of the following methods is used in the design of rigid pavement? Rigid pavement design के लिए what is the method commonly we use? You can go for process of elimination. नहीं है तो directly आपने method को pick up कर सकते. Rigid pavements are designed based upon the Westergaard method. As per present IRC 58 is concerned, we are using modified Westergaard method, modified by Teller and Sutherland, but यही सही आंसर है. प्रेजेंटली आल्सो मॉडिफाइड वेस्टरगार्ड. एंड एक बार ऑप्शंस को देख लो. ऑप्शन बी सेज ग्रुप इंडेक्स मेथड. ग्रुप इंडेक्स मेथड इज यूज्ड फॉर फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन. CBR मेथड इज यूज्ड इन फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन एज पर ओल्ड IRC 37. McLeod method is also a method of design of flexible payment. So only method which is used for the design of rigid payment is Westergaard method. At present, as per IRC 58, we are using modified Westergaard method based upon Teller and Sutherland. IRC specification again, the maximum value of exceptional gradient recommended by IRC for steep terrain. For steep terrain in elevated area more than 3 kilometers above the mean sea level is
exceptional gradient in steep terrain is as per IRC 8%. Is a direct memory oriented specifications. ये पूरा specification आपने रट मारना पड़ेगा. This is directly the extract of your रट्टू. ये match the following questions देखो. ये थोड़ा critical सा दिखते मगर उतना critical नहीं है. इधर क्या दिया है? लिस्ट वन में पूरा प्लान्स दे के रखा है. लिस्ट वन, प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3 लाइक दैट प्लान्स पूरा दे के रखा है. एंड लिस्ट 2 में उसका पर्पस क्या है दे के रखा है. सो प्लान 1 जनरली द स्टार्टिंग प्लान, प्लान 1 इज द स्टार्टिंग प्लान ऑफ एनी सर्वे वर्क. एक बार पूरा देख लो, ऑप्शंस भी एक बार देख लो. प्लान 1 is matching with you see A is matching with here 1, here 2, here 3, here 4 पूरा मैचेस है. कोई एक एग्जैक्ट आंसर आपने पिकअप किया तो यू कैन फाइनलाइज द आंसर. प्लान 1 इज द स्टार्टिंग प्लान इन एनी सर्वे वर्क. एक बार देख लो. लोकेशन ऑफ प्लेसेस with their respective quantities of productivity. That is what given in 1. Location of places with their respective quantities of productivity. General area plan is second option. Third one is distribution of population groups. Fourth one is existing road networks with the traffic flow and desired line diagrams. So starting में हमने जनरल प्लान एरिया को देखते. सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू प्लान 1, A should match to 2. This is the best appropriate option. A should match with 2. If you pick up A matching with 2, आंसर आ गया देखो. So only option A is matching with 2 is Bombay. So now again come to capital B should match with 3. Capital B is plan 2 matches with 3. Distribution of population groups. पहले जनरल एरिया प्लान को लेना पड़ेगा, बाद में वो एरिया में पॉपुलेशन ग्रुप्स किधर ज़्यादा है किधर कम है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन ऑफ ए पर्टिकुलर जोन, यू नीड टू डिसाइड. बाद में C should match with 1. B matches with 3, C should match with 1. Plan 3 matches with 1. Location of places with their respective quantities of productivity. एक जगह पे क्या क्या प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे, क्या क्या इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स जनरेट हो रहे, क्या क्या एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आ रहे, पूरा आपने डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा. बाद में प्लान 4 is nothing but network of traffic flow with desire line diagrams. पहले जनरल प्लान एरिया लेना पड़ेगा, बाद में पॉपुलेशन ग्रुप्स लेना पड़ेगा, बाद में एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी देखना पड़ेगा, बाद में यू नीड टू गो फॉर accurate analysis and then you need to draw the desire lines. Desire line is the straight line joining origin and destination of the traffic flow. So this is the sequence. आपने एक प्लान ए प्लान 1 आइडेंटिफाई किया तो आंसर आइडेंटिफाई कर सकते. सच ए इजी क्वेश्चन इज दिस. ये क्वेश्चन देख लो, दिस इज स्लाइटली लॉजिकल क्वेश्चन है. स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस SSD फॉर ए two-way traffic on a two-lane road. Two-lane, two-way road is 60 meter. Say this is two-lane road, two-way. That means आपने जा सकते, opposite vehicle भी आ सकते. You are going on one lane, opposite vehicle is coming on the other lane. So opposite vehicle is not a problem to us. कोई कुछ obstruction है तो ये लेन पे ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपने स्टॉप करना पड़ेगा. सो हियर SSD विल बी कितना दे के रखा है, 60 मीटर दे के रखा है. दिस इज फॉर टू लेन टू वे हाईवे, टू लेन रोड.
बट टू वे ट्रैफिक इज देयर। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, टू वे ट्रैफिक ऑन ए सिंगल लेन रोड। अभी हमको एक सिंगल लेन रोड है, सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक, एक विलेज रोड, गांव का रोड इज ए सिंगल लेन रोड, बट यू आर गोइंग ऑन द रोड, अपोजिट भी व्हीकल आ रही, आपने जा रहे, अपोजिट व्हीकल को भी अलाउ कर रहे। सेफ्टी के लिए कौन रुकना पड़ेगा बताओ। आपने जा रहे अपोजिट व्हीकल रुक गया, आपने जा रहे बोला तो देयर में भी चांस ऑफ एक्सीडेंट। आपने स्टॉप हो गया, अपोजिट व्हीकल इज नॉट स्टॉप्ड, अगेन देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट। सो सेफ्टी के लिए आपने रुकना पड़ेगा, अपोजिट व्हीकल भी स्टॉप करना पड़ेगा। आपके लिए एसएसडी चाहिए, अपोजिट व्हीकल स्टॉप करने के लिए भी एसएसडी चाहिए। सो फॉर सेफ्टी we require minimum of SSD plus SSD, that is nothing but 2 into SSD required. Required side distance is, safe SSD for this single lane two way traffic is, we call it as intermediate side distance ISD, 2 times of SSD. SSD already दे के रखा है कितना 60 मीटर, अभी 2 times of 60 nothing but 120 मीटर। सो सिंगल लेन टू वे ट्रैफिक के लिए टू अवॉइड एक्सीडेंट कम से कम 120 मीटर विजिबल डिस्टेंस रहना है, देन देयर वोंट बी एनी चांस ऑफ एक्सीडेंट ऑन दैट पर्टिकुलर रोड। सो आंसर इज 120 मीटर। कॉमन क्वेश्चन बट लॉजिकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन देख लो, फॉर ए पर्टिकुलर हाईवे सेफ नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। नॉन पासिंग मीन्स यू आर नॉट अलाउड टू पास, you are not allowed to pass means you need to stop. SSD is 89 meter. Non-passing side distance is, stopping side distance is 89 meter. Overtaking side distance, OSD is nothing but 289 meter. What is the intermediate side distance? Intermediate side distance ISD बोला तो लास्ट क्वेश्चन भी यही कॉन्सेप्ट पे था और ये भी यही कॉन्सेप्ट पे दिया है। सेम कॉन्सेप्ट पे 2 क्वेश्चन, कभी कभी एमपीएससी एग्ज़ाम में एक कॉन्सेप्ट पे 3-4 क्वेश्चन भी आ सकते, ऐसा रहते हैं कभी कभी। सो ISD इज इक्वल टू 2 इंटू SSD, कितना होगा, SSD ही लेना पड़ेगा, OSD का ज़रूरत ही नहीं है, वो एक्स्ट्रा डेटा है, ऐसा कन्फ्यूज़न के लिए दे के रखा है। 2 इंटू 89, 2 इंटू 89, 90 ले लो, 90 इंटू 2 इज 180, 2 कम करो, 180 2 कम किया तो 178। कैलकुलेटर नहीं हुआ तो ऐसा करना पड़ेगा, 89 को 90 कर लो, 90 इंटू 2 इज़ 180, इधर एक ऐड करके राउंड ऑफ किया ना, सो 2 इंटू 1 2 कम कर लो, 178 आ जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन देख लो। As per MORTH, Ministry of Road and Transport of Highways, the minimum Marshall stability value as per MORTH for bituminous concrete road shall be, this is a standard specification as per MORTH. It is 900 kg. You need to by heart this specification. This is Marshall stability. Stability is nothing but the load at failure of the Marshall specimen is 900 kg. ये क्वेश्चन देखो, this is the question based upon rehabilitation of the bridges, strengthening and rehabilitation of bridges, old bridges. First statement देख लो एक बार, during inspection of existing bridges, accurate measurement of the size and location of each type of deterioration means damage is required. आपने कुछ ब्रिज को डैमेज हुआ तो नहीं है तो क्रैक हुआ तो एग्जैक्ट लोकेशन, व्हाट इज द साइज ऑफ दैट क्रैक, व्हाट इज द टाइप ऑफ द क्रैक, ये पूरा आपने
आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, नोट डाउन करना पड़ेगा. दिस इज करेक्ट. अदरवाइज आपको रिपेयरिंग मेथडोलॉजी मे नॉट बी दैट मच एक्यूरेट. स्टेटमेंट 2 ले लो. सच मेजरमेंट हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ मेथड ऑफ स्ट्रेंथनिंग. ये पूरा helps us in determining method of strengthening, working out the quantities involved in the repair. आपने एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द क्रैक लोकेशन आपने पूरा नोट कर दिया तो व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग पर्पस, व्हाट इज द मेथड रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रेंथनिंग, you can estimate it. It is a logical question. Just by looking at the reading at the two statements आपने आंसर पिकअप कर सकते. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है. सो आंसर इज कलकत्ता सी. 1 and 2 आर करेक्ट. ये क्वेश्चन देख लो. एज पर IRC क्लास AA लोडिंग द top notch heavy loading of almost all the major bridges, major roads must be designed for class AA loading, especially in the border areas. The nose to tail spacing between two successive tracked vehicles shall not be less than. ये ट्रैक्ड व्हीकल है, आर्मी टैंकर, एक आर्मी टैंकर है, दिस इज आर्मी टैंकर, और एक आर्मी टैंकर इसके आगे चल रही. दोनों आपका ट्रैफिक में चलते ना, टचिंग टू बम्पर एंड बम्पर, ऐसा नहीं चलना. द डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हीकल शुड बी मिनिमम ऑफ 90 मीटर. कम से कम 90 मीटर इज मिनिमम. वन व्हीकल टू अनदर व्हीकल 90 मीटर गैप रहना पड़ेगा. दिस इज गिवन इन IRC एज पर क्लास AA लोडिंग. दिस अ स्पेसिफिकेशन. आपने ये स्पेसिफिकेशन को रट्टा मारना पड़ेगा. रट्टू. Which of the following bridge types is most suitable for a span more than 800 meter? 800 मीटर के ऊपर स्पैन है तो क्या ब्रिज आपने लेना पड़ेगा. एक्चुअली एज पर IRC मोर देन 600 मीटर है तो we need to go for the suspension bridge. Anything more than 600 meter as per IRC. Presently ये क्वेश्चन में more than 800 मीटर दिया है ना, so anything more than 600 meter is suspension bridge. That is the topmost category of bridge. 800 के ऊपर भी वही ब्रिज इस्तेमाल कर सकते. So answer is suspension bridge. Long span bridges are generally by suspension bridges. देखो ये क्वेश्चन को, ये भी स्पेसिफिकेशन है. While designing a highway bridge, when wind speed at the deck level exceeds dash kmph, live load need to be considered. No live load is need to be considered acting on the bridge. As per IRC 6, if the wind load exceeds 100 kmph, wind speed exceeds 100 kmph, then wind speed is dominating speed there, you need to ignore the live load. ये IRC 6 में दे के रखा है. If you want you can just check up. Mostly ये ब्रिजेस में, MPSC ब्रिजेस में स्पेसिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस दे रहे. देखो 100 kmph स्पीड से ऊपर गया तो लाइव लोड पूरा इग्नोर कर सकते. उसका मीनिंग क्या है कि एट 100 kmph स्पीड आ रहे तो ब्रिज में जाने के लिए व्हीकल्स थोड़ा सोचते, ड्राइवर सोचते, वो रुक लेते बोला तो लाइव लोड नहीं जाते. लाइव लोड इज नॉट गोइंग ऑन टू द ब्रिज मीन्स नो नीड टू कंसिडर फॉर द डिज़ाइन. ये ड्राइवर्स पूरा पैनिक होके ब्रिज पे चलने के लिए थोड़ा सोचते, स्टॉप करके रुक के विंड कम होने के बाद जाते. दट्टू एक व्हीकल जाने के बाद इंटेलिजेंट ड्राइवर जाते फॉर देयर सेफ्टी. सो मोर देन 100 kmph है तो लाइव लोड इग्नोर करके डिज़ाइन कर सकते. बट मोर देन 100 kmph
coming on the deck level of a bridge is very rare event. Once in lifetime or 2 times in lifetime may come into the picture. ये क्वेश्चन देख लो. The halo girder bridge, nothing but box girder bridge. Halo girder is box girder bridge, are economical for spans between, usually 25 से 30 तक स्पैन है तो बॉक्स गर्डर ब्रिज यूज़ कर सकते. दिस इज अ सिंगल बॉक्स गर्डर ब्रिज. देखो ये पूरा एम्प्टी है एंड दिस इज अ प्री स्ट्रेस्ड गर्डर and the span from here to here is between 25 to 30 meter. है तो it is better to go for box girder. Advantage क्या है कि box girder can resist the torsion very effectively. Okay, this is a single cell box girder. आपने multi cell box girder भी use कर सकते, depends upon your width requirement. आपका 2 लेन 3 लेन रोड है तो मल्टी सेल बॉक्स गर्डर यूज़ कर सकते, बट स्पैन शुड बी बिटवीन 25 to 30 मीटर. ये क्वेश्चन देख लो, 2 स्टेटमेंट्स दे के रखा है. दिस इज बेस्ड अपॉन डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज. दिस इज बेस्ड अपॉन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्चार्ज इन अ रिवर. देख लो स्टेटमेंट 1. Design discharge may be taken as the maximum value obtained from the at least 2 of the methods determining discharge. आपने discharge in a river calculate करना है तो minimum 2 methods use करना पड़ेगा and उसमें से maximum discharge लेके design करना पड़ेगा. Generally we have different methods. Very commonly used method is empirical method, rational method or area velocity method. कोई 2 लेके मैक्सिमम डिस्चार्ज लेके डिज़ाइन करना पड़ेगा. स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहे हैं? इफ द वैल्यू सो obtained exceeds next high value by more than 50%, then the maximum design discharge is limited to 2.5 times the lower estimates. आपने 2 मेथड्स यूज़ कर रहे, उसमें से मैक्सिमम सेलेक्ट कर रहे. दैट्स व्हाट जनरली वी यूज़. आपने 2 यूज़ कर रहे, वो दोनों में मोर देन 50% फ़र्क है. द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट मेथड डिस्चार्ज सेकंड मेथड डिस्चार्ज इज मोर देन 50%. देन क्या करना पड़ेगा? आपने लोअर डिस्चार्ज लेके उससे 2.5 इंक्रीज करके वो डिस्चार्ज शुड बी यूज्ड फॉर द डिज़ाइन. दिस इज करेक्ट. स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. मिनिमम 2 मेथड्स लेके डिज़ाइन करना पड़ेगा, दोनों में मैक्सिमम लेना पड़ेगा. बाय चांस डिफरेंस ऑफ द 2 इज मोर देन 50% है तो लीस्ट वैल्यू लेके 2.5 टाइम्स इंक्रीज करके आपने डिज़ाइन कर सकते. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट. ऑप्शंस ऐसा दे के रखा है. सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट. सो आपने ऑप्शन ए को सेलेक्ट कर सकते. ये क्वेश्चन देख लो, 4 स्टेटमेंट्स दे के रखा है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ब्रिज साइट अक्रॉस ए रिवर. आइडियल ब्रिज साइट नथिंग बट लोकेशन ऑफ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर के लिए आइडियल कंडीशंस क्या है आपने सेलेक्ट करना पड़ेगा. ए जनरल क्वेश्चन, आपने जनरली आंसर पिकअप कर सकते. इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना मत. आपने एक बार ये सेंटेंस आपने पढ़ा तो ये आसान सा क्वेश्चन ही है. देख लो स्टेटमेंट 1. देयर शुड बी स्ट्राइट रीच ऑफ द स्ट्रीम wherever you want to construct a bridge. ए रिवर है तो इधर ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर सकते. द प्लेस वेयर यू आर कंस्ट्रक्टिंग द ब्रिज, द रिवर शुड बी स्ट्राइट. रिवर में कुछ बेंड्स वगैरह है तो ऐसा विल्स वगैरह ज़्यादा रहते. द वाटर में कुछ टार्शन भी रह सकते.
that is causing problem to our bridge piers. So as far as possible there should be straight reach of the river. फर्स्ट स्टेटमेंट्स तो सही है, स्टेटमेंट 1 सही है ना, स्टेटमेंट 1 इधर है इधर है इधर है, इधर स्टेटमेंट 1 नहीं है, सो स्टेटमेंट सी चले गया, ऑप्शन सी को निकाल दो. सेकंड वन, द फ्लो ऑफ वाटर एट द ब्रिज साइट शुड बी स्टडी फ्लो रहना है, करेक्ट, अप टू हियर स्टडी है. The regime condition with wills and cross currents. The regime should be with wills. Wills बोला तो ये पानी में चक्कर चक्कर आते रहते हैं ना, वो wills रहना है बोल के बोल रहे. Actually the place where you want to construct a bridge, will नहीं होना, cross currents भी नहीं होना. Cross currents बोला तो ऐसा साइड से आके वाटर मर्ज होते ना, ऐसा नहीं होना. वाटर सादा सीधा चलते रहना. There should not be any merging of the water from the sides. Merging of water from sides क्या बोलते, क्रॉस करंट्स बोलते. कुछ आड़ा टेढ़ा बेस है तो विल्स भी रहते, पानी में ऐसा विरल भी रहते. सो क्या बोल रहे, विरल है तो वो जगह ब्रिज के लिए अच्छा है बोल रहे, वो जगह ब्रिज के लिए सही है बोल रहे. दिस इज फालतू स्टेटमेंट है. Second is false statement. Now see the options without 2. 2 है तो कट करो, किसमें 2 है, ऑलरेडी कट कर दिया हूँ. इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, और एक ले लो, 4 ले लो. स्टेटमेंट 4 सही है तो ये स्टेटमेंट को पिकअप कर सकते, नहीं है तो और दूसरा लेंगे, 4 ले लेंगे. सफिशिएंटली वाइड, ब्रिज साइड पे रिवर शुड बी सफिशिएंटली वाइड, वाइड नहीं है, सफिशिएंटली वाइड, इनफ ऑफ वाइड विथ फर्म बैंक्स. साइड्स रहते हैं ना, साइड शुड बी स्ट्रांग एंड विड्थ शुड बी सफिशिएंटली वाइड. पूरा वाइड नहीं है, सफिशिएंटली वाइड है. सो स्टेटमेंट 4 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 4 रहना है ऑप्शंस में, इसमें स्टेटमेंट 4 है. देखो बोला तो इसमें नहीं है, दिस इज रॉन्ग ऑप्शन. इसमें भी नहीं है, ये भी रॉन्ग ऑप्शन, दिस इज करेक्ट है. सो ऐसा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से आपने आंसर पिकअप कर सकते. मैंने थर्ड स्टेटमेंट में क्या है भी नहीं देखा हूँ, बट आंसर सेलेक्ट कर लिया हूँ. एक्चुअली आपने फोर्थ स्टेटमेंट देख के ये डिसाइड कर सकते. थर्ड स्टेटमेंट ऐसा जस्ट टू टाइम पास देखेंगे. देर शुड बी नो कॉन्फ्लुएंस ऑफ द लार्ज ट्रिब्यूटरीज एट द ब्रिज साइट. ये ब्रिज साइड पे पानी ऐसा आ रहा है तो देर शुड नॉट बी एनी ब्रांच लाइन कमिंग एंड मीटिंग हियर. कुछ ब्रांच लाइन से पानी मीट हो रहा है समझो, इधर पूरा विरल 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 पानी का विरल रहते. वो विरल से there will be lot of scouring, there will be lot of disturbance to the piers. Okay, there should be no confluence of large tributaries, no confluence, no merging of large tributaries. Statement 3 भी correct है. So answer हमने क्या चुना है वो सही है. ये क्वेश्चन देख लो, most reliable method. Reliable means you can rely upon. Most what do you say, probability के वजह से authenticated method based on hydraulic characteristics of a stream. Among the methods for determining the flood discharge. Flood discharge के लिए which is the best method? The best method to determine the flood discharge is unit hydrograph method. This is a modern method. Area velocity method भी use कर सकते. This is approximate. एस्टिमेशन फ्रॉम एम्पिरिकल फार्मूले नाम ही अप्रॉक्सीमेट है. एम्पिरिकल फार्मूले से आपने डिस्चार्ज यूज़ करना, चेजेस फार्मूला, राइस फार्मूला, दिस आर ऑल एम्पिरिकल, नॉट एग्जैक्ट मेथड्स. एस्टिमेशन फ्रॉम फ्लड मार्क्स, फ्लड मार्क्स रहते हैं ना, मार्क्स, वो मार्क्स देख के, वो हायर मार्क्स से लोअर मार्क तक वो डिफरेंस देख के आपने फ्लड एस्टिमेट कर सकते.
डिस्चार्ज एस्टिमेट कर सकते. दिस इज ऑल्सो अप्रॉक्सीमेट मेथड. सो एक्यूरेट मेथड इज यूनिट हाइड्रोग्राफ मेथड. आपको कुछ डाउट आया तो और ऑप्शंस थोड़ा पढ़ लो, एलिमिनेट कर लो. एरिया वेलोसिटी मेथड एक्यूरेट ही है बट एवरेज देते, वो एवरेज डिस्चार्ज देते. एम्पिरिकल फार्मूले not accurate. Flood marks is a purely approximate method. So exact method is only one method, that is unit hydrograph method. Answer is America. ये क्वेश्चन देख लो. which of the following is or ये क्वेश्चन देख लो. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मूवेबल ब्रिड्जेस. फर्स्ट वन इज बास्क्यूल ब्रिड्ज. बास्क्यूल ब्रिड्ज बोला तो दिस इज बास्क्यूल ब्रिड्ज. द बेस्ट एग्जाम्पल इज लंडन ब्रिड्ज. लंडन ब्रिड्ज इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द थेम्स रिवर. दिस इज बास्क्यूल ब्रिड्ज. यू कैन रोटेट with this pivot. If any ship or vessel is going on the water, crossing the water, a bascules are lifted up. If vessel passes by, ये पूरा नीचे उतर देते. Now vehicles can go. Vehicles can go. If any ship is coming, then they lift it, stop the traffic and allow the vessel to go, allow the ship to go. Next is swinging bridge. This is a swinging bridge. ये ब्रिड्ज है ना, ये पूरा ब्रिड्ज ऐसा व्हीकल्स के लिए. दिस इज फॉर व्हीकल्स. कुछ लॉन्ग वेजल आ गया समझो. दिस इज शिप. शिप और स्टीमर इज कमिंग. देन ये मिडिल पोर्शन है ना, मिडिल पोर्शन को ऐसा घुमा दिया समझो, ऐसे रोटेट कर दिया. ये लॉन्ग वेजल ऐसा क्रॉस पार होके चले जाते. बाद में ये फिर रोटेट होके इधर फिक्स हो जाते. देन व्हीकल्स आर अलाउड टू गो. दिस इज कॉल्ड स्विंगिंग ब्रिड्ज. इट इज स्विंगिंग अबाउट द सेंटर. इट इज सपोर्टेड एट द सेंटर. स्विंग होते रहते. दिस इज ऑल्सो ए सॉर्ट ऑफ मूवेबल ब्रिड्ज. नाउ और एक इज लिफ्टिंग टाइप ऑफ ब्रिड्ज. ये ब्रिड्ज ऐसा था, इफ nothing is there going in the water, traffic is allowed like this continuously. कोई वेजल ऐसा शिप आ गया समझो, ये मिडिल पार्ट है ना, ऐसा लिफ्ट कर देते. कोई शिफ्ट आ रही, शिप आ रही, ये लिफ्ट कर दिया समझो. ये मिडिल पार्ट को लिफ्ट कर दिया. वो शिप क्रॉस होने के बाद वापस. दिस इज अ लिफ्ट एलिवेटर ब्रिड्ज. हमारा लिफ्ट है ना, 3rd फ्लोर से 5th फ्लोर तक चलते, ऐसा है. ये 3rd फ्लोर समझो, 5th फ्लोर को चले गया, बाद में नीचे आ गया. एलिवेटर लिफ्ट और लिफ्ट ब्रिड्ज. ये पूरा बास्क्यूल ब्रिड्ज, स्विंगिंग ब्रिड्ज, लिफ्ट ब्रिड्ज, ऑल आर मूवेबल स्पैन ब्रिड्जेस. दीज आर ऑल मूवेबल ब्रिड्जेस. सो द आंसर इज ऑल द अबव. ये क्वेश्चन देख लो, बहुत सिंपल का क्वेश्चन है. डिफरेंट शेप ऑफ टनल्स दे के रखा है. आपने लिस्ट 1 में शेप ऑफ टनल, लिस्ट 2 में द कॉमन यूज. वो शेप इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? सर्कुलर सेक्शन. सर्कुलर सेक्शन इज जनरली यूज्ड फॉर कैरिंग वाटर. वाटर के लिए, वाटर अंडर प्रेशर. आपका घर पे वाटर आते हैं ना, घर पे ड्रिंकिंग वाटर आते हैं ना, वो क्रिस क्रॉस सेक्शन से रहते, सर्कुलर ही रहते. स्पेशली वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए सर्कुलर सेक्शन यूज़ करते. ये शुड मैच विथ 2. ये शुड मैच विथ 2 बोला तो अमेरिका गया, बॉम्बे गया. सो यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस. देख लो इधर. दिस इज सर्कुलर सेक्शन फॉर कैरिंग वाटर. परफेक्टली सर्कुलर सेक्शन. ये पूरा वाटर. दिस इज नॉट कंप्लीटली फिल्ड अप विथ वाटर, पार्शली जा रहे. एंड ड्रिंकिंग वाटर है, उसमें कुछ सस्पेंडेड मैटर नहीं रहते, कुछ ऑब्जेक्ट्स नहीं रहते.
सादा सीधा वाटर जाने के लिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इज बेटर ड्रिंकिंग वाटर के लिए, और अदरवाइज वाटर विदाउट एनी सेडिमेंट्स के लिए दिस इज सर्कुलर शेप इज बेटर. A should match with 2. नेक्स्ट आपने और कोई सेगमेंटल सेक्शन लेंगे. सेगमेंटल सेक्शन जनरली यूज्ड फॉर सबवेज. ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है. वी यूज सेगमेंटल सेक्शन फॉर सबवेज. D should match with 1. D should match with 1 मीन्स ऑलरेडी अमेरिका गया इधर है. सो फाइनल आंसर इज कलकत्ता. A should match with 2, D should match with 1. दो ही ऑप्शन से आपने आंसर पिकअप कर सकते. सेगमेंटल सेक्शन बोला तो ऐसा रहते. दिस इज सेगमेंटल सबवेज के लिए यूज कर सकते. दिस इज वर्टिकल सेक्शन हियर, वर्टिकल सेक्शन टिल सर्टेन पोर्शन एंड बाद में आर्च रहते. वर्टिकल सेक्शन अप टू द स्प्रिंगिंग लाइन वर्टिकल सेक्शन ही रहते, सादा सीधा वॉल्स रहते, बाद में ऊपर आर्च आते. This is generally used for subway. This is subway. What is the section? Segmental section. 3 segments है देखो. Left vertical segment, right vertical segment, ऊपर arch segment. This is the best. Arch action gives you to resist the topsoil pressure. Vertical है ना, ऐसा अच्छा सा पीपल वॉक करने के लिए दिस इज द बेस्ट शेप. सेगमेंटल शेप इज बेस्ट फॉर दी व्हाट डू यू से सबवेज. दिस इज एग शेप्ड, एक एग जैसा है ना. दिस इज फॉर सीवेज पर्पस. एग शेप्ड इज फॉर सीवेज पर्पस. आपका ड्राई वेदर में वाटर सीवेज वाटर इतना तक आ गया समझो. हेवी मानसून में इधर तक आ गया समझो. द एडवांटेज ऑफ एग शेप्ड सेक्शन इज द डिस्चार्ज. फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज द फ्लो इज कांस्टेंट. Q इज इक्वल टू A इंटू V ना. फॉर एनी काइंड ऑफ डिस्चार्ज इंक्रीज हुआ तो एरिया इंक्रीज होते, वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट. डिस्चार्ज कम हो गया समझो, एरिया कम होते और वेलोसिटी इज कांस्टेंट. सो दिस इज बेस्ट शेप फॉर द ड्रेनेज पर्पस. मे बी फॉर म्युनिसिपल ड्रेनेज और मे बी फॉर वाटर ड्रेनेज ड्यूरिंग द मानसून सीजन. द एग शेप्ड इज वेरी गुड फॉर carrying the sewage and or drainage. आपका मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है क्या देख लो. C should match with 4. yes इसमें है. C is matching with 4. what about B? एक बार देख लो. for traffic purpose generally we use it horse shaped section. for traffic के लिए horse shaped section is very common. हॉर्स शू ऐसा थोड़ा ऐसा रहते, बाद में ऐसा आर्च एक्शन रहते. सो हॉर्स शू आपने देखा होगा ऐसा रहते. बॉटम इज फ्लैट. आपका हॉर्स का शू रहते ना ऐसा रहते. दिस इज अ मल्टी सेंटर्ड सेक्शन फॉर रेलवे के लिए, इवन फॉर द रोडवे के लिए कंप्लीटली आर्च एक्शन रहते. बेस में फ्लैट रहते. Base is flat required for the transport purpose. Horseshoe is better for any kind of transport, road transport, rail transport, any kind of transport through vehicles. So best option is answer C. पूरा to know all the things is not required. एक दो आपने मैच किया तो आंसर मैच हो जाते. That is a speciality of this type of questions. ये क्वेश्चन देख लो. Consider the following statements with reference to the shield method of reference to adoption of circular cross section of tunnels driven by shield method. Tunnel driven by shield method, this is the shield method. Generally tunnel boring machine TBM.
gives you circular cross section, and automatically you can shield, nothing but you can cover the entire tunnel surface by the shields. It drills, take out the muck, and also protects the surface with the shields. You can use tunnel boring machine for any soils, the loose soils, rocky soils, anything, easy method. Statement 1 देख लो, the circular cross section provides maximum cross sectional area with minimum perimeter. That is perfect. The circular cross section gives you maximum cross section with least possible perimeter, least possible circumference, and it is giving you least resistance also. So statement 1 is true. What about statement 2? Circular cross section does not afford protection to the primary lining. Actually, circular cross section, because of the circular cross section, it gives you a sort of protection. Before you keep the lining, it will be giving you a sort of resistance by radial pressure. Actually speaking, it gives protection to the primary lining. Circular shape of the cross section gives protection to the primary lining. He is saying that does not afford to give protection to the lining. Second statement is false statement. What about the third one? Circular cross section offers least resistance to the easy rotation of the shield. ये टनल बोरिंग मशीन है ना, ये रोटेट होते होते कट करते जाते रहते. दिस गिव्स यू लीस्ट रेसिस्टेंस. कुछ रेक्टेंगल वगैरह है तो शार्प कार्नर्स रहते, शार्प कार्नर में कट करना मुश्किल है. ये सर्कुलर है ना, ईजिली यू कैन कट इट. यू कैन पुट दैट शील्ड, टनल बोरिंग मशीन कटिंग हेड, यू कैन पुट इट and slowly you can rotate it. So that is the best shape for boring inside the soils. So 1 is correct, 3 is also correct. Statement 4 को देखो, circular cross section is not ideally suitable for resisting semi fluid pressure. Actually fluid pressure or semi fluid pressure के लिए resist करने के लिए circular cross section is very effective. Oh, that's what we have discussed. The circular cross section is very effective to resist full water pressure or semi partial filling of the water pressure. For any kind of fill, either it is full pressure of the water or partial pressure of the water, circular cross section is effective. So in 4th statement he is saying circular cross section is not ideally suitable. Actually it is best suitable. So the 4th statement is false statement hai. So what are the correct statements? 1 is correct, 3rd is correct. These are the options given for the question. So 1 is correct, 3rd is correct. So answer A is correct. Other things are wrong options. Simple question. A question एक बार देख लो. Which of the following is not a method of tunneling in rocks? Linear plate method. A linear plate method is generally used in soft rocks, soft soils. So this is the answer. एक बार और दूसरा चेक करेंगे. Heading and benching method, hard soil. Cantilever car dump method, hard soil. Drift method, top drift, medium drift, side drift, middle drift. All these things are in hard soils only. So soft soil only one method is linear plate method. Direct question. आपने methods थोड़ा रट्ट मार के रखना पड़ेगा. Which are the methods in soft soil? Which are the methods in hard soil? आसान सा क्वेश्चन है. Easily you can answer to such question. आपने एक बार रट्टा मार के रखा तो. एक क्वेश्चन देख लो. Consider the following statements about the choice of the tunneling methods in soft strata. Choice of the tunneling methods in soft soil. It depends on nature and type of soil. Correct hai. So the choice of tunneling depends on the type of soil available, nature of the soil available. This is correct. It depends on the size of tunnel. Size उतना फर्क नहीं गिरेगा as it is soft soil. It depends upon availability of equipment. Correct.
depends on the availability of equipment, you can drill the tunnel. So 1 is correct, 3 is also correct. Option is 1 and 3 are correct. A question देखो, consider the following statements with respect to various methods of tunneling. With respect to various methods of tunneling. Drift method is extremely costly method and it is generally recommended for ground conditions which are difficult to solve. आपने क्या करते हैं ड्रिफ्ट मेथड में एक ड्रिफ्ट बनाते मे बी टॉप साइड बॉटम साइड और मिडिल साइड एंड वो ड्रिफ्ट को एक्सपैंड करते जाते. सो इन एक्सट्रीमली कॉस्टली मेथड बिकॉज आपने ड्रिफ्ट पूरा आपने ड्रिल करना पड़ेगा, एंड टू एंड ड्रिफ्ट ड्रिल करना पड़ेगा, बाद में एक्सपैंड करना पड़ेगा. दिस इज ऑलमोस्ट डबल प्रोसेस. सो इट इज़ एक्सट्रीमली कॉस्टली प्रोसेस. सो दिस इज ट्रू. हेडिंग एंड बेंचिंग मेथड इन्वॉल्व्स द ड्राइविंग ऑफ टॉप पोर्शन. आपने कुछ पोर्शन हेड करके बाद में बेंच करना पड़ेगा. हेडिंग बेंचिंग दिस इज़ द बेस्ट मेथड इन हार्ड सॉइल. एंड आपने हेडिंग करते हैं ना, वो कट करके म्यूक को नीचे डालते, वो निकालते, बाद में यू नीड टू बेंच इट ऑन द बॉटम. सो दिस इज आल्सो ए गुड मेथड for tunneling. The third one is full face method is nothing but by tunnel boring machine is suitable for small cross sections through stable rock. Small cross section and stable rock है तो आपने drill करते चले जा सकते. This is best method. Nowadays you are drilling large size tunnels also with heavy tunnel boring machines but costly approach. So as per the options are concerned, all 1 and 2, 3 are correct. All are correct statements only. Which of the following statements are incorrect? Wrong. Incorrect statement आपने चुनना पड़ेगा. Normally shafts are laid in horizontal direction only. आपने एक टनल आपने डिग करना है समझो, आपने ऐसा टनल डिग करना है समझो. We can construct the shafts. वर्टिकल शाफ्ट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते वेंटिलेशन के लिए, टू ड्रेन अवे दी फाउल गैसेस. वर्टिकल शाफ्ट भी कंस्ट्रक्ट कर सकते. सो शाफ्ट नीड नॉट बी हॉरिजॉन्टल. सो दिस इज द मेन टनल. वो टनल सपोर्टिंग करने के लिए शाफ्ट फर्स्ट ड्रिल करते एंड इवन आफ्टर द कंस्ट्रक्शन आल्सो वी यूज दैट शाफ्ट फॉर foul gases removal and all. So shaft can be horizontal, can be vertical, sometimes inclined also. Normally shafts are laid in horizontal direction only. So this is faltu statement hai. One is faltu. Let us see the other options. One only, one hai idhar one nahi hai, so this option gone. Idhar 2, 3, 4 one nahi hai, A be gone. I want a false statement na. All the above. Let us check one more to eliminate or add the option D. Usually 90 centimeter high wall around the edge of the shaft is constructed. ये shaft opening है ना, वो protection करने के लिए आपने all around आपने कुछ peripheral wall, something like parapet wall लगाते, so that there should not be any sort of danger through this shaft. ऐसा shaft open करके hill में रख दिया तो पूरा animals, even sometimes human beings may fall down. इसीलिए थोड़ा protection करना पड़ेगा. What should be the height of the protection? The height of the protection is 90 centimeter, 3 feet. Minimum तो रहना ही पड़ेगा. This is true. First statement is not correct. Second statement true है तो this is gone. So what is the only option you can get it? One is possible to get it. एक बार ये दो स्टेटमेंट भी ज़रूरत नहीं है मगर एक बार देखेंगे. आइडियल साइड फॉर द शाफ्ट वुड बी ए वैली. आपने हिल में शाफ्ट कंस्ट्रक्ट कर रहे तो लॉन्ग शाफ्ट चाहिए. वैली में आसान रहते. से सपोज वैली नथिंग बट इन द मिडिल ऑफ टू हिल्स, दिस इज अवर टनल है समझो.
टनल ऐसा जा रहा है समझो. शाफ्ट कंस्ट्रक्शन कैन बी क्लोज टू द वैली, दिस इज बेटर. आपका लेंथ ऑफ द शाफ्ट विल बी स्मॉल, बट प्रोटेक्शन देते हैं ना 90 सेंटीमीटर का, so no problem of water going inside the shaft. Better suitable position is construct a shaft in the valley. During sinking of the shaft in soft soils, deflection of the sheet would be prevented. आपने सॉफ्ट सॉइल है तो ये शाफ्ट आपने सिंक कर सकते. सिंक बोला तो कुछ पाइप लेके थ्रू द सॉइल्स यू कैन सिंक इट, बट थोड़ा डिफ्लेक्शन हो गया तो इंक्लाइंड हो जाते वो शाफ्ट. यू हैव टू बी केयरफुल रिगार्डिंग द सिंकिंग ऑफ द शाफ्ट. सो द प्रेजेंट इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट. शाफ्ट कैन बी वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड आल्सो. आंसर इज ऑप्शन ए. एक बार एक क्वेश्चन देख लो. विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रेटा इज द कंप्रेस्ड एयर टनल इज मोस्ट सूटेबल मेथड. कंप्रेस्ड एयर आपने लगा के टनलिंग करते बाय वैक्यूम मेथड ऑफ रिमूवल ऑफ द मक एंड ऑल. दिस इज पॉसिबल इन सॉफ्ट क्लेस. आपने सैंडी सॉइल में कंप्रेस एयर भर दिया तो सक्शन भर दिया तो वैक्यूम नहीं बनते. बिकॉज ऑफ द वॉइड्स इन द सैंडी सॉइल, the creation of the vacuum is very difficult. Compression air is not possible to work out there in the sandy soil. Silt में भी कर सकते हैं मगर silt is very very finite particles and it won't give you the water seal. ये भी नहीं है. gravel तो बहुत मुश्किल है. So clayey soil you can use the compressed air tunneling. Even if you suck out the air, what will happen is the clay will hold that negative pressure. With that you can remove the muck, you can remove the cutting material, you can remove the foul gases and all. See the question, this is related to previous question only. Which one of the tunneling methods is suitable for water bearing strata? Water bearing strata means it may be aquifer. Aquifer बोला तो इसमें water रहते, clayy रहते. And in that method, compressed air method is better. Because water पूरा soil में भरा हुआ है. If you want to go for full face method, the water, dealing with water is difficult. Full face method means cutting the soil with full face. Heading and benching is not possible. You need to cut a portion and then bench it, not possible with water bearing strata. Drift method is also not possible. First you need to drill the drift end to end and widen the drift. If water is not there, drift method, head and bench method, full face method are useful, but the best method if water bearing strata is there is the compressed air method. A question देख लो, which of the following statements are incorrect? While dealing with incorrect statements चाहिए. ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. We need to choose incorrect statements while driving the tunnel through the soft soils. Incorrect statements. First I'll go for fourth statement. It requires support to the section which is excavated. Soft soil में support चाहिए, lining चाहिए, नहीं है तो वो पूरा गिर जाते. So this is a true statement. I want incorrect statement. 4 is true. 4 नहीं होना. 4 नहीं होना बोला तो ऑप्शन डी चले गया. ओके, ऑप्शन 1 दोनों में है, देखेंगे. यूज ऑफ एक्सप्लोजिव्स नॉट रिक्वायर्ड. सॉफ्ट सॉइल में यूज ऑफ एक्सप्लोजिव्स नॉट रिक्वायर्ड. इट इज आल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. आई वांट इनकरेक्ट ना, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. 1 भी करेक्ट स्टेटमेंट है. 1 निकाल दो. 1 निकाल दो बोला तो ऑप्शन सी गया, ऑप्शन ए गया. रिमेनिंग इज दिस ओनली. एक बार देखेंगे. प्रोग्रेस ऑफ वर्क इज वेरी फास्ट. एक्चुअली सॉफ्ट सॉइल में वेरी स्लो चलते रहते. ओनली फॉर नेम सेक इट इज सॉफ्ट बट वर्क इज वेरी स्लो बिकॉज आपने सपोर्ट करते करते ड्रिल करना पड़ेगा. फॉर एक्सकवेशन ऑफ मटेरियल हेवी एंड कॉस्टली इक्विपमेंट आर रिक्वायर्ड. एक्चुअली स्पीकिंग heavy and costly equipment are not required because
we never get heavy boulders in the cutting of the soft soils. We get all powderish material. You can transport it easily by the dump trucks or tippers. For excavation of material, heavy and costly equipment is not required. Second is false statement. Progress of work is very fast. These also false statement. Second and third are the false statements. Like that अपने क्वेश्चन रीड करके अप्रोप्रिएट आंसर चुनना पड़ेगा.